وہ جس کے مان پہ علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا تھا، وہ جس کی دنیا میں آنے کی دعا فاطمہ کر کے گئی تھی۔ میں فضائل زیادہ پڑھ گیا ہوں، اب مجھے کوشش کرنا کہ مصائب میں گریہ کر لینا تاکہ مجھے طویل مصائب نہ پڑھنا پڑے۔ وہ جس کی آنے کی دعا فاطمہ نے کی تھی، وہ جس کے کرتے نبی کی بیٹی اپنے زخمی ہاتھوں سے سیتی رہی ہے، وہ ابوالفضل العباس جو دنیا میں آیا ہے تو اتنا زمین پہ نہیں چلا جتنا علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں پہ رہا۔ شہزادیوں نے وقت مقرر کیے ہوئے تھے، صبح عباس میں اٹھاؤں گی، ظہر کے بعد کوئی کہتی تھی میں اٹھاؤں گی، رات کو عباس میرے پہلو میں سوئے گا۔ اتنا ماں کی گود میں نہیں رہا جتنا علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں پہ رہا ہے۔ شہزادیاں عباس کو قرآن کی طرح ہاتھوں پہ اٹھا کے رکھتی تھی۔ حضرت عباس کے پاؤں زمین پہ چلنے والے ہو گئے، حضرت عباس نے صحن علی میں چلنا شروع کیا۔ ایک دن ماں کی حویلی میں گئے، اماں صحن میں بیٹھی رو رہی تھی، عباس نے آ کے ام البنین کی گود میں سر رکھا، رکھ کے کہا اماں کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا عباس جب تک تو چھوٹا تھا میں چپ رہی، عباس اب تو چلنے والا ہو گیا ہے، عباس آج میں تجھے کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ غازی دیکھ کہتے اماں رو نہ، مجھے بتا۔ بی بی دیکھ کے کہتی ہے عباس مجھے بتا تو کہاں گیا تھا؟ فرمایا اماں میں بہنوں کے گھر میں تھا۔ بی بی دیکھ کے کہتی ہے عباس بس یہی بتانا وہ تیری بہنیں نہیں۔ کوشش کرنا ماتم کی تیاری کرنا، عباس وہ تیری بہنیں نہیں ہیں۔ عباس دیکھ کے کہتا بی بی عالیہ اور کلثوم میری بہنیں نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں عباس وہ تیری بہنیں نہیں ہیں، وہ فاطمہ کی بیٹی ہے، تو کنیز کا بیٹا ہے۔ عباس وہ بھائیوں سے پردہ کرتی ہیں، عباس وہ بابے سے پردہ کرتی ہیں، عباس تجھے ہاتھوں میں اٹھا کے رکھتی ہیں، عباس میری وفا میں فرق آ رہا ہے، عباس اب ان کے سامنے سر جھکایا کر، عباس انہیں جی آقا زادی کہا کر، عباس ان پہ اللہ درود پڑھتا ہے، عباس یہ زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ عباس سارا دن گھر میں بیٹھا رہا، یہ فاطمہ کی بیٹیاں، میں کنیز کا بیٹا، یہ زہرا کی بیٹیاں، میں کنیز کا بیٹا۔ اگلے دن علی کی بیٹی گھر میں آئی، دے کہتی عباس صبح سے تو میرے حجرے میں کیوں نہیں آیا؟ ہاتھ باندھ کے تھا مجھے نہیں پتا تھا میں کنیز کا بیٹا۔ تڑپ گئی علی کی بیٹی، رو کے کہتی ہے عباس کس نے بتایا؟ بی بی مجھے ماں نے بتایا ہے۔ بی بی دیکھ کہتی نا عباس تو میرا سہارا ہے، تو میرا مان ہے۔ عباس جیسے جیسے تو شباب کی طرف جا رہا ہے، زینب کی حسرتیں بڑی مضبوط ہو رہی۔ 21 رمضان کو علی کوفہ میں آنکھیں بند کی، 9 دن کے بعد کوفہ میں عید آئی، امام حسن بہن کے گھر آئے، رو کہتے زینب آج بھائی بن کے نہیں بابا بن کے آیا ہوں، زینب آج مجھ سے بیٹی بن کے کچھ مانگ، میں بھائی بن کے نہیں تجھے بابا بن کے دوں گا۔ میں جملہ بہنوں بیٹیوں کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ بی بی عالیہ رو کے کہتی حسن میں کچھ مانگوں مجھے دے گا؟ فرمایا جو مانگے گی میں دوں گا۔ رو کے کہتی پھر عباس کو کہ باب علی کے کپڑے پہن کے میرے گھر میں آئے، میں غازی کو چلتا ہوا دیکھوں، عباس چلتا ہے تو ہو بہو علی لگتا ہے۔ عباس کو کہیے ایک بار باب علی کے لباس پہن کے میرے گھر میں۔ حسین نے وطن چھوڑا تو عباس، مکہ پہنچے تو دروازے پہ عباس، کربلا آئے تو عباس، 7 محرم کل والا دن حسین کی بیٹیاں پیاسی ہو گئیں، بار بار آ کے کہتا رہا مولا مجھے اجازت دے میں فرات کا گھاٹ خالی کرواؤں۔ فرمایا عباس یہاں جنگ کرنے آتا تو سکینہ نہ لے کے آتا، عباس یہاں لڑنا ہوتا میں زینب کو ساتھ نہ لے کے آتا۔ 10 محرم ایک ایک شہید مقتل میں جاتا رہا، غازی کی آنکھوں کے سامنے عباس کے شاگرد مارے جاتے رہے۔ عباس بار بار جا کے کہتے مولا سب کو روک مجھے بھیج۔ حسین ہر بار کہتے نہیں فوج لڑوا تو علمدار ہے، لشکر کو بھیج تو علمدار ہے۔ جب عباس بالکل اکیلا رہ گیا آخری بار آ کے کہتا مولا بھی اجازت دے دے۔ حسین رو کے کہتے عباس میں تجھے کہہ رہا ہوں تو میری فوج کا علمدار ہے۔ عباس نے دونوں ہاتھ پاؤں پہ رکھے رو کے کہنے لگا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار؟ مولا میرا اکبر مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا، میرے اونو محمد
मौला मेरी आंखों के सामने मेरे लायक शागिर्द घोड़े की जीन से गिर गए। आवाज भाई थोड़ी ठीक करना। मौला मुझे क्यों कह रहे हैं कि मैंने नहीं जाना? अब्बास अपने खेमे के दरवाजे में बैठे थे, या हुसैन की बेटी आई, चाचा गाजी मेरा असगर बड़ा प्यासा है। फरमाते बीबी मैं तो गया हूं, शहनशाह मुझे इजाजत नहीं दे रहे। रो के कहती अगर मैं इजाजत ले दूं तो पानी ले आएंगे। फरमा बीबी इजाजत तू लेके दे, मैं फुरात खेमे में ना लेके आऊं, अब्बास न कहना। हुसैन की बेटी चलती चलती वहां आई जहां गरीब टीले पे बैठे थे। हुसैन ने सकीना को आते देखा, मुंह मदीने की तरफ कहता अम्मा मैं उजड़ गया, अम्मा तेरी शक्ल वाली बेटी सवाल लेके आ रही है। जनाब सकीना बाबे के सानू पे बैठ के कहती है बाबा मेरा असगर बड़ा प्यासा है, बाबा अगर इजाजत दे दे मेरा चचा फुरात से पानी ले आए। इतना कहना था। जो बाप बेटियों वाले बैठे हो तुम्हें पता है, बाप मजदूर भी हो तो कोशिश करता है कि बेटी की कोई ख्वाहिश ऐसी ना हो जो बाप पूरी ना करे। हुसैन चंद लम्हों के मेहमान थे। सकीना ने अब्बास की इजाजत की ख्वाहिश की। हुसैन रो के कहते अच्छा सकीना मुझे सिर्फ इतना बता तेरे असगर की उम्र कितनी है? फरमाया 6 माह। फरमाया मेरे अब्बास की उम्र कितनी है? फरमाया 32 साल। हुसैन रो कर सैयदादी फैसला खुद करना, ऐसे ना हो ना 6 महीने का बचे ना मेरा 32 साल का बचे। शहजादी वहां गई जहां हजरत अब्बास खड़े थे। आके कहती है चचा मैंने बाबा से इजाजत ले दी। बाबा कह रहे सकीना अलम और मशकीजा लेके आ। अलम और मशकीजा लेके सकीना खेमे से चली। हुसैन की आवाज आई सकीना बोझ तकसीम कर, ऐसे कर अलम अब्बास को मैं देता हूं, मशकीजा तू पहना। सकीना की आवाज आई चचा थोड़ा झुकिए मैं आपको मशकीजा पहनाऊं। अब्बास झुकते 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 इतना झुक गए अब्बास के दोनों हाथ 4 साल की मासूमा के पांव पे आए। हुसैन ने रो के कहा अब्बास तूने जंगल में सैयदादी का हया किया है, मैं हुसैन वादा करता हूं क़यामत तक के लिए तेरा हाथ अलमों पे बुलंद रहेगा। अच्छा अब्बास अल्लाह के हवाले, अच्छा गाजी अल्लाह के हवाले। अब्बास घोड़े की जीन पे आए। यह खेमे से आवाज आई आलिया की अब्बास मुझे मिल के जाना। अब जिस बंदे ने मातम करना है घर तक वो सतर के लिए तैयार रहे। अब्बास का घोड़ा आलिया के खेमे के बाहर गया। शहजादी की आवाज आई अब्बास एक बार मेरे खेमे के अंदर आ। हजरत अबुल फजल अब्बास जिसने सारी जिंदगी आलिया के दरवाजे पे नौकरी दी थी, आज हुक्म ज़ैनब था। अब्बास दरवाजे पे नहीं, अब्बास मेरे खेमे के अंदर आ। अब्बास कांपते हुए बदन से अली की बेटी के खेमे के अंदर दाखिल हुए। ज़ैनब ने खेमे का पर्दा गिराया। देख अली गाजी मुझे खबर है तू आखिरी बार मिलने आया है। अब्बास मुझे के बता तुझे बचपन में चलना किसने सिखाया था? फरमाया अली की बेटी तूने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। फरमाया एक चीज मैंने सिखाई थी, अब एक तू मुझे सिखा। अब्बास कहता मेरी क्या जुर्रत, मैं अली की बेटी को सिखाऊं। रो के कहती मुझे बता रस्सियां कैसे पहनते हैं, शराबियों से कैसे बोलते हैं, दरबारों में कैसे जाते हैं, खुतबे कैसे देते। भैनी दा मान सलामत रहवे। एक मिन्नत हमशीर ते लाई वज कल मिलने ने जेवर कह दिया वाले कि मैं पावने हिर दिखलाई वज कि मैं बोलना नाल शराबी दे। अब्बास मुझे बता खुतबे कैसे देते, अब्बास मुझे बता शराबियों से कैसे बोलते। गाजी जमीन पे गिरे, रोकेगा ले दे शहजादी इजाजत, ना खुतबे देने पड़े न शाम जाना पड़े। हजरत अब्बास ने बीबी ज़ैनब का खेमा छोड़ा। ए मेरी बहनों बेटियों आई भी अब्बास के पहरे में हो,
जाओ भी गाजी के पहरे में, अब्बास हमेशा तुम्हारी इज्जतें महफूज रखे। अगला जुमला मेरी बेटियों तुम सुनना, मेरी बहनों तुम सुनना। हजरत अब्बास गए अपनी बहन रुकैया के खेमे में। रुकैया के खेमे में अब्बास अपने घोड़े समेत आए। आके कहने लगे रुकैया तो उम्मुल बनीन की बेटी है, मैं उम्मुल बनीन का बेटा हूं, हमारी मां ने सैयदों की नौकरी की है। रुकैया मैं तेरी एक मिन्नत करने आया हूं, रोग गति हुक्म करो मेरा वफा के परवरदिगार। हजरत अब्बास ने अपने घोड़े से जीन उतारी, अपने घोड़े की रकाबें खींची, अपने घोड़े की लजाम निकाली, निकाल के कहते रुकैया मैं तुझे बताता जाऊंगा, तू वैसे वैसे जीन रखना, तू रकाबें डालना, तू लजामें खींचना। रोगी कहती अब्बास घोड़े बनाना मर्दों का काम है, मैं अली की बेटी हूं। अब्बास रो के रुकैया थोड़ी देर के बाद हुसैन अकेला रह जाएगा, सारी जिंदगी हुसैन का घोड़ा मैंने बनाया है, अब हुसैन मक्तल में जाए, हुसैन का घोड़ा बनाना। हाय अब्बास, हाय अब्बास, हाय गाजी। एक एक खेमे से अब्बास विदा हुआ। अब अब्बास वहां पहुंचे जहां टीले पे हुसैन बैठे थे। गरीब ने अब्बास को आते हुए देखा। हुसैन की आवाज आई अब्बास जा रहा है, अब्बास की आवाज आई मौला जा रहा हूं। हुसैन की आवाज आई एक मर्तबा अपने घोड़े से उतर। अब्बास घोड़े से उतरे। गरीब की आवाज आई अब्बास मेरे गले में बाहें डाल। अब्बास ने हुसैन के गले में बाहें डाली। हुसैन रो के कहता अब्बास आज अशूरा 10 मुहर्रम 61 हिजरी तक अली के हर बेटे ने अली के बदर ओहद खैबर खंदक जमल सफीन के बदले अली के बेटों ने दिए हैं। कभी हसन के जनाजे से इन्होंने बदला लिया है, कभी मेरी मां के दरवाजे से लिया है, कभी मेरे अकबर के सीने से लिया है, कभी मेरे कासिम के लाश के टुकड़ों से लिया है। अब्बास अब तू मैदान में अली बन के जा रहा है। अब्बास अब ध्यान से लड़ना, अब बदले ज़ैनब ने देने हैं, अब बदले सकीना ने देने हैं। अब्बास मेरी सकीना बड़ी छोटी है, मेरी सकीना से तेरे नेज़ों के बदले सीने पे हाथ मार जिसे खबर है आज 8 मुहर्रम है। हाय अब्बास, हाय जवानी। हुसैन की माए ये चीखे मार के रो रहे हो, जनाब ज़हरा तुम्हारे पुरसे कबूल करे, जनाब फातिमा तुम्हारा रोना कबूल करे। अब्बास अल्लाह के हवाले। बस जल्दी खत्म कर रहा वरना 2 घंटे चाहिए सिर्फ गाजी का जाना पढ़ने के लिए। अब्बास कैसे रुखसत हुए, अब्बास कैसे विदा हुए। करबला की दर्दनाक शहादतों में से एक शहादत है अब्बास, क्योंकि अब्बास के गिरने के बाद फिर करबला में जुल्म हुआ है। अब्बास के गिरने के बाद फिर इनके सारे खौफ खत्म हो गए हैं। जब तक अब्बास था ये डर में थे। अब्बास घोड़े की जीन पे आए, मशकीज़ा अब्बास ने अपने बाजू पे लिया, नेज़ा अब्बास ने अपने जानू पे रखा। हुसैन की आवाज आई सकीना। जी बाबा। मेरा लाल सुबह से जो भी जाता था मुझे अब्बास बताता रहा। अब्बास बताता था कि औन ने हमला किया, अब्बास बताता था कि अकबर लकतल में चला गया, अब्बास बताता था कि कासिम ने इतने मार दिए। सकीना मैंने पूरी करबला गाजी की आंखों से देखी है। सकीना मेरा अब्बास जा रहा है। सकीना मेरी आंखों में बिनाई नहीं है, मैं खड़ा हो जाऊं मेरी कमर में ताकत ही नहीं है। मेरे लाल अब टीले पे तू खड़ी हो जा, मुझे अब्बास का जाना सुनाती रहे। अब मुझे नहीं पता यहां से जिंदा कितने बंदे उठेंगे। इधर अब्बास का घोड़ा चलना शुरू हुआ। सकीना की आवाज आई बाबा मेरा चचा मैदान में जा रहा है। हुसैन की आवाज आई मरहबा। आवाज आई बाबा मेरा चचा मक्तल में पहुंच गया है। आवाज आई मरहबा उम्मुल बनीन का बेटा। सकीना की आवाज आई बाबा मेरे चचा का घोड़ा
फुरात में चला गया है। बाबा फुरात का घाट खाली हो गया है। बाबा मेरे चचा का घोड़ा फुरात के अंदर है। बाबा मेरे चचा ने मशकीजा भर लिया है। बाबा मैंने तुझे कहा नहीं था मेरा चचा मैदान में जाएगा तो पानी लाएगा। हुसैन ने दर्द से रेत उठा के सर पे डाली, आवाज आई दुआ कर अब ले आए। इधर हुसैन ने जुमला कहा, सकीना की आवाज आई वो देख बाबा चचा का घोड़ा फुरात से निकल आया है। आवाज आई मरहबा गाजी। फरमाया चचा का घोड़ा खैमों की तरफ आ रहा है। ये कहती कहती सकीना गिरी, रोक के दी। बाबा फौजों ने चचा को घेर लिया है। बाबा चारों तरफ से लश्कर आ गया है। हुसैन ने कमर पे हाथ रख लिया। सकीना की आवाज आई बाबा चचा का दाया बाजू गिर गया। हुसैन मुंह के बल रेत में गिरे, रोक गए थे हाय ज़हरा। सीने पे सीने पे सीने पे मैं ज़ैनब के मान का गिरना पड़ रहा हूं। अल्लाह जवानी कबूल करे, अल्लाह तेरा पुरसा कबूल करे। आवाज आई बाबा मेरे चचा का दाया बाजू गिर गया है। हुसैन मुंह के बल रेत पे गिरे। सकीना की आवाज आई बाबा मेरे चचा का दूसरा बाजू भी गिर गया है। आवाज आई हाय गुरबत। सकीना ने रेत पे बाबे के सीने पे सर रखा, रो के कहती ओ वक्त का इमाम मेरा असगर बचे ना बचे। अब्बास बुला। फरमाया सकीना क्या हुआ? फरमाया तेरी दाढ़ी सफेद हो गई। और बाबा तू लम्हे में ज़ईफ हो गया। और ज़हरा का बेटा तू ज़ईफ हो गया। बाबा 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 तू अपना अब्बास वापस बुला ले। सांस ले लो, सांस ले लो, सांस ले लो। कौन है जो बशर हो के आवाज सुने? कौन है जो इंसान हो के आवाज सुने? शहजाद खान नई जुर्रत बंदों की गाजी सुनना। ये हौसले थे अली की बेटियों के। वल्लभा हुसैन। मेरे पास मेरे फोन में पूरी डिजिटल लाइब्रेरी है। मैं वो एक रवायत भी यहां पढ़ दूं ना गाजी की शहादत की। सैयदजादा मुझे ज़हरा की कसम है, मैं एक रवायत पढ़ दूं ना यहां पर लोगों के दिल फट जाएं। हम किताबों से बचा बचा के लाते हैं वो जो सिर्फ तुम बर्दाश्त कर सको। हुसैन घोड़े की ज़ीन पे बैठे, अब्बास को लेने के लिए हुसैन का घोड़ा चला। हुसैन ने अपनी तलवार को हवा पे अलम किया। हुसैन अपने घोड़े को फुरात की जानब दौड़ाते जा रहे थे। या थोड़ा दूर जाके हुसैन का मुर्तजिज रुक गया। हुसैन की आवाज आई मुर्तजिज थक गया है तो मैं भाई की लाश में पैदल चला जाऊं। मुर्तजिज ने कांपते बदन से अपने सुम्मों की तरफ इशारा किया। हुसैन ने देखा अब्बास का दायां बाजू पड़ा था, अब्बास का बाजू रस्ते में पड़ा था। हुसैन घोड़े की ज़ीन से गिरे। हुसैन ने जवान भाई का बाजू उठाया, रोकेगा इस पे ज़ैनब को बड़ा मान था। इन बाजुओं पे अली की बेटियों। हाय गरीबी। मैंने कसम खाई है कि मैं वो रवायत नहीं पढ़ूंगा कि गिरा कैसे था, सर पे गुर्ज कैसे लगा था, उस गुर्ज ने अब्बास के सर की हालत क्या की थी। मैं वो जुमला नहीं पढ़ूंगा। पर्दे में बहनें बैठी हैं, वे गोद में बच्चे लेके आई हैं, किसी बहन का दिल फट जाएगा, कोई मां मर न जाए। मैं छुपा छुपा के रवायत पढ़ने लगा हूं। अब मैंने इतना इम्तिहान मजमे कर लिया, तुम्हें ज़हरा का वास्ता अब इसी जुमले में समझ लेना और मैं इसी पे अलम बरामद करवा लूं। अब्बास थोड़ा सा आगे गया, गाजी का बायां बाजू मिला। अब्बास के दोनों बाजू हुसैन ने सीने से लगाए। हुसैन कातलों के ढेर में अब्बास ढूंढ रहा था। 30 सेकंड के बाद अलम आने लगा है और तुमने पूरी रात घरों में जाके मातम करना है। मुझे अलमे अब्बास की कसम है, थोड़ी दूर अब्बास की लाश से हुसैन थे। अब्बास के कातलों ने हुसैन को आते देखा। ये अब्बास
عباس کی لاش پہ آئے، انہوں نے عباس کی لاش کو کاٹنا شروع کر دیا۔ یہ عباس کی لاش کاٹ رہے تھے، غریب زمین پہ گر گیا، رو کے کہتا ہے او میرا جوان، او میرا طاقت، او میرا جوان غازی، او میرا علم والا،